Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Chemistry. So our today's topic is expansion of an ideal gas and changes in thermodynamic properties. So when an ideal gas gets expand in a system, there is either change in volume, there is a change in volume from initial state to final state. That is a state of the system goes change from initial state to final state. So what are those thermodynamic properties which goes some change in the course of expansion of an ideal gas? And there is another thing we have to know, that whether the expansion is an isothermal expansion or an adiabatic expansion. And the second thing is that whether the process is carried out reversibly or irreversibly. So first of all, we are going through isothermal expansion. Isothermal expansion. So as you know, that isothermal process is that process which is carried out at constant temperature. That is, the temperature cannot vary from one state to another. It is constant throughout all the process. So if expansion going to take place, so in this case we have to, like, the thermodynamic properties which are going to be changed, or which we want to calculate, we have to be calculate, are those like Q, W, change in internal energy and change in enthalpy. So first of all, the process is an isothermal process, and in an isothermal process, as I said you earlier, that the temperature is constant. So the delta U, the change in internal energy of an ideal gas, depends only on the temperature. And since in an isothermal process the temperature is constant, so delta UW is also constant, or we would rather say it is equal to 0. Then we have delta H. Delta H is the change in enthalpy of the process. So change in enthalpy, I want to recall you a formula or a derivation or an expression which we learned in our previous video. That is, the change in enthalpy is equal to the change in internal energy plus at constant pressure with the change in volume, that is from an initial state or somewhat final state. So now we can write it as delta H. Let's common it. चलिए अब हम इसको कॉमन लेते हैं. जो ये डेल्टा है, the change in a state, whether change in any property in these two. So I can write it U plus PV. And there is another thing. For 1 mole of an ideal gas, PV is equal to the van der Waals equation. PV is equal to RT. So delta U plus RT, 1 mole, not 1 mole, for n number of moles. So let's open up. आइए हम अपनी ब्रैकेट को ओपन करते हैं. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा nRT. हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है. ठीक है. अब क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो ये टर्म 0. डेल्टा यू भी हमारी 0 है, क्योंकि टेम्परेचर 0 है. डेल्टा यू किसी भी आइडियल गैस में डेल्टा यू टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है सिर्फ. डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस. So delta U is also equal to 0 because temperature is constant, and hence delta H comes also out to be 0. Then we have two things left, two properties left, Q and W. So Q and W. So
as we know that using the first law of thermodynamics, using first law, delta U is equal to Q plus W. So in an isothermal expansion, delta U is 0 as the process is isothermal, and I am going to tell you that this about this thing every time, that at constant temperature, or in the case of an isothermal process, delta U is 0 because the delta U in the case of an ideal gas depends only on the temperature. In the case of an ideal gas, so it is 0, and Q plus W, where the term Q is equal to minus W. So the work done by the system, this is by the convention. हमने जो कन्वेंशन पढ़ी थी ना वर्क डन की, माइनस साइन के बाद है, प्लस साइन के बाद है, तो माइनस साइन के बाद है जब सिस्टम वर्क डन करता है सराउंडिंग के ऊपर, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. Okay, so now we have to calculate these two things, Q and W, in the case of an isothermal expansion. Whether, so we have two cases, whether the process is reversible, whether the isothermal expansion is an reversible isothermal expansion or it is an irreversible isothermal expansion. So now let's take a look at both of these processes one by one. So now let us calculate Q and W in isothermal reversible expansion. So first of all, isothermal reversible expansion, that is the process is carried out at constant temperature. The second thing, this is a reversible process, and the third thing, this is the case of expansion of gas. So suppose, as I have told you in my previous video, that where we have taken the example of a cylinder, और उस सिलेंडर में क्या था, हमने एक आइडियल गैस ली थी, वो गैस हमने उसके ऊपर एक पिस्टन रखा था, उस पिस्टन का एक्सटर्नल प्रेशर P था, और जो इंटरनल प्रेशर था जो गैसियस मॉलिक्यूल्स के कारण था उस केस में, ये तो इंटरनल प्रेशर हो गया, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो यानी कि होल गैस का जो प्रेशर है वो P है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ये पिस्टन अप्लाई कर रहा है ये P एक्सटर्नल है. तो जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या था, उसमें हमारे जो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था, ये एक्सटर्नल प्रेशर हमारा इंटरनल प्रेशर के इक्वल था, क्योंकि हम और हमने ये जो पिस्टन लिया हुआ है ये वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. दूसरी बात, हमारी ये जो वॉल्स हैं ये इस कंटेनर की, ये इंसुलेटेड नहीं है, नॉट इंसुलेटेड, बट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. Thermal equilibrium with the surroundings. The walls are not insulated, but they are in thermal equilibrium with the surroundings, so that in doing some work, when the pressure of when the external pressure is somewhat less than the internal pressure, then expansion of gas takes place. And in that is the gas is doing some work on the surrounding, that is the system is doing some work on the surroundings, and in that way cooling of gas takes place, because on expansion cooling of gas takes place, which is offset by the thermal equilibrium, which is offset by the outside surrounding temperature, so that the temperature remains constant of our this system. So now let's do the second point. Let's make our second point. So suppose if the P external is less than the internal pressure of the gas by an infinitesimally small amount dP, if the, अगर मैं इसको ये हमारा ये जो प्रेशर है, ये हमारा पिस्टन है, अगर मैं ये जो P एक्सटर्नल है
अगर मैं इसको स्मॉल अमाउंट डीपी से मैं इसको कम कर दूंगा, और जो इंटरनल प्रेशर है ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का, अगर ये इससे ये प्रेशर इंटरनल प्रेशर से इतने अमाउंट कम हो जाए, बिल्कुल स्मॉल सी अमाउंट है, तो क्या होगा, अंदर क्या है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले ये दोनों इक्वल थे फर्स्ट केस में। फिर क्या हुआ, फिर हमने इसको कम कर दिया। जब ये प्रेशर डीपी अमाउंट से कम होगा तब क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है वो क्या होगा, यानी नीचे का इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया। अब इंटरनल प्रेशर क्या करेगा, जो हमारा पिस्टन है उसको अपवर्ड लिफ्ट कर देगा। उससे क्या होगा, हमारी गैस एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, ये हमारी गैस की कुछ इनिशियल वॉल्यूम थी, और एक्सपेंशन के बाद उसकी कुछ वॉल्यूम फाइनल स्टेट पर जब हमारी गैस जाएगी तब उसकी वॉल्यूम V2 हो जाएगी, यानी कि V फाइनल या V2 व्हाटएवर वी वांट टू टेक इट। एंड देन फिर क्या होगा, फिर देखिए अब ये गया ऊपर, तो जो ये इंटरनल प्रेशर है, क्योंकि सिस्टम को तो अपने उसी स्टेट में वापस भी आना है, तो ये प्रेशर भी क्या है, ये जो इंटरनल प्रेशर है ये भी डीपी कम हो जाएगा। नहीं, हाँ ये भी डीपी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये दोनों प्रेशर फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या, सिस्टम फिर से फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा जैसा पहले था। अब हम क्या करें कि हम कुछ ऐसा करें कि ये जो वैल्यू है ये हम धीरे धीरे इसको कम करते जाए इस प्रेशर को। उससे क्या होगा, ये प्रेशर ज्यादा रहेगा, यानी कि ये वही है, ये तो हमारी ड्राइविंग फोर्स है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है, ये हमारी अपोजिंग फोर्स है, जो कि ये एक्सटर्नल प्रेशर में से हम डीपी कम कर रहे हैं ना, ये हमारे अपोजिंग फोर्स है। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जो डीपी हम इसमें से डीपी अमाउंट ऑफ प्रेशर कम कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर से, उसके कारण क्या हो रहा है, कुछ अपोजिंग फोर्स कम लग रही है, उसके कारण क्या, हमारी ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन की या फिर सिस्टम की ज्यादा हो गई है। और यही तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन है, कि जो इंटरनल प्रेशर है, कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर देन होती है, स्लाइटली। और फिर हमें क्या करना है, हाँ फिर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हमें आगे देखना है कि जो ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ये कुछ डीपी अमाउंट से कम होता गया, उसके बाद क्या होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा, यानी कि गैस हमारी एक्सपेंड होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा हमारा V1 से V2, ठीक है। अगर हमारी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी इस गैस की यहाँ पर, तो जब आफ्टर एक्सपेंशन हमारी वॉल्यूम V2 हो जाएगी, ओके। सो वर्क डन क्या होगा इस केस में, अब मान लो कि बहुत सारे सक्सेसिव स्टेप्स हो रहे हैं धीरे धीरे। मान लो जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना, शुरू में अगर हमने एक बार माइनस डीपी कम किया, एक बार डीपी माइनस किया एक्सटर्नल प्रेशर में से, तो हमारा कितना वर्क डन होगा, -P dV। ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये इंटरनल प्रेशर हमारा कांस्टेंट है सिस्टम का, और जो बाहर का प्रेशर उसको हम कम करें, उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सपेंशन और एयर वॉल्यूम चेंज हो गया कि dV, तो -P dV। और माइनस वर्क डन माइनस क्यों, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, जो कि हमारा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बैठता है। तो ये हुआ हमारा P -P dV। फिर मान लो कि जैसे कि हमारा जो ये प्रेशर है ना, ये हमने फिर और कम कर दिया। अब इसको और कम करने से क्या होगा, जो वर्क डन हमारा -P dV था, उसके साथ हमें, यानी कि हम इसको धीरे धीरे कम करते रहे, तो ऐसे -P dV वर्क डन और भी होंगे धीरे धीरे, यानी हर केस में होगा। तो हम जो चेंज इन वर्क डन लिखेंगे ना, यानी कि द स्मॉल चेंज इन वर्क डन फॉर द सिस्टम टू कम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट is the differential of the work done, that is dW, and which is equal to the sum of all the -P dV terms, that is simply we call it -P dV. So the dW is equal to -P dV, okay, and this is our term, this is our यानी कि जनरलाइजेशन, हमने ये जनरलाइजेशन निकाला इसे, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो तुम्हारा टोटल वर्क डन होगा ना। सो टोटल वर्क डन वो कितना होगा, वो उसको हम W से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू हमारे लिए आएगी। टोटल वर्क डन में हम कैसे करेंगे कि हमारी इनिशियल स्टेट से वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो चलो हमने कांस्टेंट है हमारा, लेकिन तो हमारी ये जो वॉल्यूम चेंज होगी एक्सपेंशन में V1 से V2, यानी कि अगर हम उसको V1 मान ले और V2 फाइनल की स्टेट की मान ले, या इसको आप VI भी मान सकते हैं, इनिशियल एंड V फाइनल, ठीक है। लेकिन हम V1 V2 ही मान रहे हैं, यही ठीक है, क्योंकि इतना हमें तो सिर्फ नोटेशन से मतलब है, वही हमारा, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, V1 फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अवर फाइनल स्टेट एंड द आवर एक्सप्रेशन लुक्स लाइक दैट, ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट, इसको हम यहाँ पे बाहर ले आएंगे, नहीं उससे पहले एक बार और कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी किसके इक्वल होता है, RT के, ठीक है। ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है। अब यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितनी आएगी, RT/V। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो वर्क डन कितना होगा हमारा, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 माइनस साइन RT/V dV। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बाहर आ जाएगा। R हमारा गैस कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन गैस हो ही नहीं सकता, वो भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, ये वाली टर्म बचेगी हमारी, तो लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस RT, माइनस साइन तो हमारा था, RT कॉमन था, V1 टू V2 इंटीग्रेशन 1/V एंड dV, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये एक मैथ्स का फॉर्मूला आता है कि 1/x ऑफ dx, अगर उसका इंटीग्रेशन x1 से x2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ln ऑफ x, यानी कि हमारा जो भी इसमें से ये हम इंटीग्रेट करते हैं उसकी वैल्यू ये आ जाती है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, मैं सीधी लिख देता हूं, W इज इक्वल टू माइनस RT ln और V2/V1, V2 माइनस RT ln V2/V1, ओके। सो ये हमारा work done in the case of an isothermal reversible expansion where the negative sign shows that the work is done by the system on the surroundings, and on expansion the volume goes from an initial state of volume V1 to a final state of volume V2, and R is our gas constant, T is our temperature which we have taken in an isothermal condition, and this is the work done. So now now we have इससे हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारी जो फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए कि हमारी इक्वेशन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1 V1 P2 V2 Tc कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। अब यहां से मैं V2/V1 वहां पर जो V2/V1 उसको इधर लिखे, जैसे यहां से V2/V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1/P2, तो इस P1/P2 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इससे हमारा एक और रिलेशन आ जाता है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस RT ln V2/V1 की जगह P1/P2, P1/P2। सो
we have got the work done in the case of an isothermal reversible expansion in terms of pressure and in terms of volume. So I hope you got it, and there is another thing that कि हमारी जो V2 वॉल्यूम है ना हमारी जो वो V1 से ज्यादा है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम V1 से V2 पर जाएगी, यानी कि हमारी V2 वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे। और जो हमारा प्रेशर P1 है वो P2 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। इनिशियल प्रेशर दोनों के इक्वल थे, फिर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ओके। और यही दोनों चीजें क्या हमें क्या शो कर रही हैं, ये दोनों चीजें हमें शो कर रही है कि वर्क डन in that process, that is in isothermal reversible expansion is negative। और अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर n मोल्स के लिए लिखूंगा तो ये nRT माइनस nRT V2 by V1, और अगर इसी एक्सप्रेशन को भी nRT n मोल्स ऑफ गैस के लिए लिखूंगा तो n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, so minus nRT ln P1 by P2। so you can take a view of these two formulas, because these two are very important for attending numericals in thermodynamics and for that topic also. Let's take a look at work done in an isothermal reversible compression. So in the case of compression we have that कि जो हमारा जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर वो जो एक्सटर्नल प्रेशर की बार ज्यादा होता है इंटरनल प्रेशर से, उसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम द गैस कंप्रेस हो जाती है। और गैस कंप्रेस होगी तो क्या होगा कि उसकी जो पहले कुछ वॉल्यूम थी वो उसकी फाइनल वॉल्यूम से, यानी कि उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, क्योंकि कंप्रेशन में भी होता है, क्योंकि एक्सपेंशन में इनिशियल से फाइनल तक ज्यादा होती है। अब जो होगी ना इसमें वो कंप्रेशन में उल्टा होगा, उसमें वो कम होगी, ठीक है। और कंप्रेशन जैसे एक्सपेंशन में एक्सटर्नल हमने कम किया था ना, अब कंप्रेशन में हम एक्सटर्नल को ज्यादा करेंगे इंटरनल प्रेशर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हमारा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन मास्टर, ओके। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई इतनी। पी एक्सटर्नल, मैं पीई लिख रहा हूं, पी एक्सटर्नल प्रेशर को, ये पी इंटरनल प्रेशर है गैस के कारण, ठीक है। और जो अब की बार हमने एक्सटर्नल प्रेशर को इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर डीपी से ज्यादा कर दिया है, इससे इंटरनल प्रेशर से, जिसके कारण क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी। तो उससे क्या होगा कि जो गैस की मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम थी, उससे गैस अब किसमें आ जाएगी, उसकी यानी कि उसकी जो, मैं अगर इनिशियल वॉल्यूम को इस केस में V2 से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि हमारा जो अगर गैस एक्सपेंड हो चुकी है, मान लीजिए गैस में शुरू में कुछ इनिशियल वॉल्यूम थी गैस की, और फिर गैस फाइनल वॉल्यूम पर गई, ठीक है, तो गैस एक्सपेंड हो चुकी है। अब गैस को, क्योंकि अगर वो किसी फाइनल स्टेट तक गई होगी और उसने वो वॉल्यूम अटेन की होगी पहले तो कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगी, जीरो ही होगी शुरू में, तो फिर उसने कुछ ना कुछ अटेन की। तो अब इस केस में जो उसकी उस टाइम पर जो उसकी फाइनल वॉल्यूम थी ना इस गैस की, वो हमारी इस केस में इनिशियल वॉल्यूम होगी, जिससे जो कि हमारी V2 है, समझ गए। जैसे उसमें V2 फाइनल वॉल्यूम थी ना, तब अब हमने किसी कंटेनर में गैस को फिल किया, ठीक है। अब अगर जब हम उस कंटेनर में शुरू में तो गैस की वॉल्यूम बिल्कुल जीरो थी, फिर हमने उसमें फिल किया, तो वहां पर वो वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 0 से V1 V2 टू सम ऑफ वॉल्यूम की हमने उसमें 10 20 40 50 100 200 300 400 जितने भी हमने उसमें
ml फिल की। फिर हमें क्या करना है, अच्छा फिर अब क्योंकि अब उसमें फिल्ड है वो वॉल्यूम, तो अब हमें उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। अब अगर उसमें कंप्रेशन होगा तो हमारी जो इनिशियल वॉल्यूम होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि कंप्रेशन कहां से हुआ है, फाइनल वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ है कि उसमें कुछ तो वॉल्यूम थी गैस की और उससे फिर वो इनिशियल वॉल्यूम पर आई है, यानी कि वो उसके लिए फाइनल वॉल्यूम है, जो कि जिसे कि हम इनिशियल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमारी इनिशियल वॉल्यूम थी उसमें एक्सपेंशन के केस में। तो इसमें हमारी इनिशियल वॉल्यूम V2 है और ये V1 तक आएगी, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है हमारी, और प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज, और प्रेशर हमारा हो रहा है P1 से P2 तक इंक्रीज। अब इसमें भी चलो एक बार प्रेशर को भी देख लेते, जैसे हमने वॉल्यूम को देखा है उस केस में हमारा प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा था, हमारा जो ये इंटरनल प्रेशर था ये कुछ P1 था, हमने इसको, और ये P1 से P1 ज्यादा था P2 से, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा जो प्रेशर होगा वो ये हमारा जो बाहर का प्रेशर है वो ज्यादा होगा अंदर वाले प्रेशर से। फिर इसमें क्या हुआ, जो हमारा प्रेशर है वो P1 से P2 इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्या होगा, डिक्रीज। सो इन द केस ऑफ एक्सपेंशन प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीज, सॉरी उल्टा बोल गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस, एंड इन द केस ऑफ कंप्रेशन उल्टा होगा एक्सपेंशन से, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा कंप्रेशन में क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा और हमारी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो फिर इस केस के लिए हमारा वर्क डन क्या होगा, फिर से वही बात की, वर्क डन क्या होगा, मान लो कि हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर हमारा हमने डीपी अमाउंट हाई कर दिया इंटरनल प्रेशर से, तो उससे क्या हुआ, गैस कुछ कंप्रेस हुई, वो कुछ वॉल्यूम उसकी थी, उससे कुछ कम वॉल्यूम की हो गई, हमारा कितना वर्क डन हुआ, -PdV, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अब की बार सराउंडिंग है, सिस्टम अब की बार सराउंडिंग कर रही है, ठीक है। तो वर्क डन तो नेगेटिव ही होगा इस केस में भी, क्योंकि सिस्टम का काम सराउंडिंग कर रही है, ठीक है। और तो इसलिए हमारा वर्क डन क्या होगा इस केस में, द डिफरेंशियल ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू -P/dV, ओके। देन वी हैव फिर हमारे पास क्या होगा, फिर इसके सक्सेसिव सम होंगे, क्योंकि गैस तो धीरे धीरे हो रही है, हमने तो एकदम किया नहीं, हमने फिर उसमें डीपी अमाउंट ऑफ प्रेशर ऐड कर दिया, फिर वो कंप्रेस हुआ, फिर उसमें डीपी अमाउंट ऑफ प्रेशर ऐड किया, फिर वो कंप्रेस हुआ, ठीक है। इसीलिए तो ये रिवर्सिबल कंप्रेशन है, यही तो डेफिनेशन होती है रिवर्सिबल की यही डेफिनेशन होती है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, ओके। इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, ये वाली, ये अपोजिंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स सिर्फ स्लाइटली, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, डीपी ज्यादा है इंटरनल प्रेशर से, ओके। सो देन ये हमारा हो गया differential of W, that is the small change in the work done of the process in going from volume, initial volume to the final volume, that is a compressed volume, is -PdV। और ये हमारा सम है कितना, -PdV सक्सेसिव कंप्रेशंस का। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, उसको हम W से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वर्क डन कितना होगा, हम उसको हमारी इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस, तो हमारी अब की बार हमारी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, V2, क्योंकि कुछ वो गैस उस कंटेनर में पहले से थी और उस गैस की कुछ ना कुछ वॉल्यूम V2 हमने उसको V2 से रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो वही उसी को हम इनिशियल मान लेते हैं, क्या है वो होगी ही यही। और
फिर ये कंप्रेस होके V1 वॉल्यूम पर आ जाएगी वापस, ठीक है, क्योंकि हम जब किसी को दबाते हैं ना तो ऊपर से नीचे ही आता है, यही गैस के केस में है, ठीक है, माइनस पी डी वी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए उससे पहले फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस P is equal to RT and P is equal to RT by V, and since it is the case of, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो, V2 by V1, V2 from V2 to V1, P की जगह RT by V dV, और अब इसकी जगह में क्या पुट करना है, अब हमारे पास देखो आइसोथर्मल कंडीशन है, फिर से वही बात, आइसोथर्मल कंडीशन है तो हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर का तो डिफरेंस होगा ही नहीं, और जो हमारा ये गैस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका होता ही नहीं है इंटीग्रेशन, तो फिर और वैसे भी ये तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका और इसका होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन RT को बाहर ले जाएंगे और डिफरेंस इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V1 एंड 1 by V dV, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, तो टोटल वर्क डन इज माइनस RT ln, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx एंड फ्रॉम x टू x1 या x2 जो भी हमारे पास कोई भी लिमिट हो हमारे पास, ये हमारे इस केस में V2 टू V1 लिमिट्स हैं, ln V1 by V2, ये सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ओके। देन वी हैव, अब अगर मैं कहूं कि ये तो जैसे एक मोल की, अब अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस तो माइनस nRT ln V1 by V2, और सिमिलरली जैसे हमारा वो केस था ना, for an ideal gas in an isothermal process, P1 V1 is equal to P2 V2, और P1 किसके इक्वल होगा, P1 जैसे हमें यहाँ पे V1 V2 ना, तो हमें V1 by V2 लिख लेंगे, V1 by V2 किसके इक्वल होगा, निकालो V1 by V2 तो P2 by P1, तो फिर इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ln P2 by P1, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया V1 by V2 को P2 by P1 से, तो ये हमारे पास दो हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज बन गए, क्या बने, एक तो V1 by V2 दैट इज माइनस nRT ln P2 by P1 and minus nRT ln V1 by V2, and this is the case of work done in an isothermal reversible compression in the terms of pressure, and if this term is replaced by V1 by V2 if we have given numerical in terms of volume change, that is the compression of gas given in terms of volume change, that is the work done in the case of an isothermal reversible compression in terms of volume is given by this formula. So you can easily calculate such type of numericals based on this concept, and it is a very basic concept and very interesting, so you can easily got it. So now we have a topic maximum work, that is कि अब हमने जो दोनों आइसोथर्मल कंडीशन में जो वर्क निकाले हैं ना, यानी कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो उन दोनों में से मैक्सिमम वर्क हमें किस प्रोसेस से ऑब्टेन होगा, हमें किस प्रोसेस से मिलेगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। हमें मैक्सिमम वर्क किस प्रोसेस से मिलेगा। अब जैसे कि हम देखते हैं
इन द केस ऑफ एन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कुछ स्मॉल अमाउंट से हम उसको कम करते हैं इंटरनल प्रेशर के बजाय। तो उससे क्या होता है, जो गैस है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको रिवर्सिबल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर उसको हम बिल्कुल यानी कि एकदम से जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर हम उसको एकदम से कम कर दें इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल कहलाएगी, क्योंकि वो जो एक्सपेंशन होगा वो रैपिडली हो जाएगा। यही तो एक बेसिक सा डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लोली कंडक्ट होती है और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो रैपिडली कंडक्ट होती है, जैसा कि अभी अभी एक्सप्लेन किया है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो वर्क डन हमें किस में मैक्सिमम मिलेगा। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वर्क डन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कि वो डेल्टा वी क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वेदर इट इज इन केस ऑफ एक्सपेंशन और वेदर इट इज इन केस ऑफ कंप्रेशन। सो अवर पी एक्सटर्नल क्या होता है हमारे पास, पी एक्सटर्नल जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया, या तो एक्सपेंशन के केस में वो ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर और उसके केस में ये कम होगा इरिवर्सिबल के केस में। तो फिर वर्क डन किस में मैक्सिमम मिलेगा, वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा रिवर्सिबल के केस में, क्योंकि हमारा जिसमें कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जब एक जैसा होगा ना, तब हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। और जो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, इरिवर्सिबल कंडीशन में क्या होता है, इरिवर्सिबल कंडीशन में हमारा वर्क डन कम होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल कंडीशन रैपिडली होती है। वो एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है और वो एकदम से लिफ्ट कर जाता है। उसके कारण क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है और वर्क डन होता है। लेकिन in the case of a reversible expansion, the process took place slowly. So the work done in the case of a reversible expansion, is greater than work done in the case of a irreversible expansion. So this is the case of maximum work done. So अगर हमें भी कोई ऐसी प्रोसेस करनी हो कि हमें वर्क डन मैक्सिमम मिले, क्योंकि हमारा कोई भी काम करने का मोटिव क्या है कि हम अगर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो हमें उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई काम करें तो उससे हमें मैक्सिमम वर्क डन मिले। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कई बार क्या होता है, वीडियोस पर लाइक कम आते हैं, तो अगर आप वीडियोस को लाइक कर दोगे उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और भी यानी कि कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर दूं। अब भी अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसा मुझे लगता है, लेकिन वो तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कैसा लगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा तो उससे हमारे रिसोर्स हम जितना यूज करेंगे वो सारा अच्छे से यूटिलाइज होगा वो रिसोर्स उस प्रोसेस में। और उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वो किसी भी देश के लिए अच्छी बात होती है। ये था मैक्सिमम वर्क का केस। मैक्सिमम वर्क डन हमें किसमें मिलता है, वो मिलता है रिवर्सिबल कंडीशंस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में। So our next topic is work done in irreversible isothermal expansion. So up to that point we have discussed reversible isothermal expansion and reversible isothermal compression. So now we go turn on to irreversible isothermal expansion. So as we see, the term isothermal shows that the temperature is constant throughout the process, and the term irreversible shows that the process occurs rapidly. That is, our external pressure is very less than the internal pressure, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो एक्सपेंशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गैस इमीडिएटली एक्सपेंड कर देगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम है भाई इंटरनल प्रेशर से। और एक्सपेंशन का तो हमें पता ही है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा V1 से V2 तक, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, लेकिन इसमें
अब हम बताते हैं वर्क डन क्या होगा, डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो इसमें दो केस होते हैं, एक तो फ्री एक्सपेंशन का केस होता है, फ्री एक्सपेंशन, और दूसरा केस होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो हमारा तो फ्री एक्सपेंशन का केस होता है, इसमें जो फ्री वर्ड है उससे क्या पता चल रहा है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना वो बिल्कुल जीरो होगा। इफ P एक्सटर्नल इज जीरो देन हमारा जो वर्क डन होगा वॉल्यूम V1 से V2 तक माइनस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, या फिर मैं V2 माइनस V1 लिख दूं क्योंकि हमने V1 से V2 लिखा है, पर इसमें वर्क डन जीरो होगा क्योंकि हमारा जो P एक्सटर्नल है वो जीरो है। ये किसके केस में होता है, जब गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है, और ये केस होता है वैक्यूम का केस। ठीक है, ये केस होता है वैक्यूम का केस। तो वैक्यूम के केस में व्हेन अ गैस expands freely no external work is done because external pressure is zero, गैस एकदम से एक्सपेंड होगी। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में होगा हमारे पास, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में होगा हमारे पास जो अब हमें ये पता है कि हमारा इस केस में ना हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही रिवर्सिबल एक्सपेंशन शो करे। तो क्योंकि केस तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का है, ये इतना बहुत कम रखना होगा, बिल्कुल जीरो नहीं बहुत कम रखना होगा। तो फिर इस केस में क्या होगा, जो हमारा वर्क डन होगा वही माइनस V, कोई भी वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपेंशन होगा, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, एंड देन वी हैव P एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1। ठीक है, और जो ये हमारा जीरो की इक्वल नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो की इक्वल नहीं है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के केस में। और फिर अब अगर मैं इन दोनों में फिर से कंपैरिजन करूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो कौन से में ज्यादा वर्क डन होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, क्योंकि उस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो P एक्सटर्नल है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस या सिस्टम में। अगर इसको PI से डिनोट करूं इंटरनल प्रेशर को, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वर्क डन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो एकदम से तो जाएगा नहीं, बहुत धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। जबकि रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल ही कम होता है, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल ही कम होता है, जीरो भी नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, और उसके कारण क्या होता है प्रोसेस रैपिडली होगी, वो जो पिस्टन होगा वो रैपिडली अपवर्ड लिफ्ट कर जाएगा, लेकिन उसके कारण जो प्रेशर है, सॉरी जो वर्क डन है इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो क्या होगा, वो रिवर्सिबल से तो कम ही होगा, क्योंकि रिवर्सिबल में तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है तो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा, और रिवर्सिबल में जो जल्दी करेंगे उसमें हमारा मिनिमम वर्क डन होगा। तो इसीलिए एक हिदायत देता हूं कि अगर कुछ भी करना हो, कुछ भी अपनी लाइफ में, तो उसको रिवर्सिबली करो, इरिवर्सिबली कभी मत करना, क्योंकि हमें मैक्सिमम वर्क डन सिर्फ रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मिलता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में नहीं मिलता। ओके, सो these are our two conditions in irreversible isothermal expansion. I hope you are getting them. I hope you like this video, so please share, subscribe and like this video.